آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ جنور واقعے کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار، اشرار کی گرفتاری اور غفلت برتنے والے پولیس عہدیداروں کی معطلی کا مطالبہ۔ قائد مجلس مقننہ اکبر الدین اویسی کی قیادت میں مجلسی وفد کی ڈی جی پی تلنگانہ سے نمائندگی۔ مرکزی وزیر شیوراج چوہان کا تلنگانہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ، ممکنہ مدد کا تیقن۔ تلنگانہ میں ایک ہی دن میں 40 سینٹی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ، زائد از 5000 کروڑ کا نقصان۔ تلنگانہ ڈی ایس سی کی فائنل کی جاری، اور حیدرآباد میں نشے کا ایک اور نیا طریقہ، وسکی آئس کریم کی فروخت کا انکشاف۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی کے ایک وفد نے، جس کی قیادت فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی کر رہے تھے، آج ڈی جی پی ڈاکٹر جتیندرا سے ملاقات کی اور جینور میں مساجد پر منظم حملے، قرآن پاک کی بے حرمتی اور مسلمانوں کی املاک کی تباہی پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس وفد نے اشرار کی فوری گرفتاری اور غفلت برتنے والے پولیس عہدیداروں کی معطلی کا مطالبہ کیا۔ جناب اکبر الدین اویسی نے ڈی جی پی کو بتایا کہ مسلمانوں کی املاک اور عبادت گاہوں کو ایک منصوبہ بند طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے، اس لیے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ 31 اگست کو قبائلی خاتون کے ساتھ مبینہ بدسلوکی یہ حملے کا واقعہ رونما ہوا۔ دوسرے دن ملزم آٹو ڈرائیور شیخ مخدوم کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ جناب اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ منظم انداز میں 60 مسلمانوں کی دکانات، 5 مذہبی مقامات اور 5 مکانات کو نشانہ بنایا گیا اور کروڑوں روپے کا نقصان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن قبل رمیش سکار نامی کرانہ شاپ کے مالک کے پاس پیٹرول کی بولتیں کس نے لائی، جس کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کی املاک کو جلایا گیا۔ قائد مجلس مقننہ نے کہا کہ ان تمام واقعات کا اس وقت ہی نوٹ لیتے ہوئے مسلم علاقوں میں پولیس کی جمعیت کا تعینات کیا جاتا تو یہ تشدد کے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ ساتھ ہی ساتھ جو منصوبہ بند طریقے سے وہاں کے لوگوں کو، بیپاریوں کو ایک فساد کا ماحول بنا کر 59 شاپس اور 5 مساجد کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے، یہ آر ایس ایس اور کون لوگ اس کے اندر انوالو ہے۔ ہمارے کو جو اطلاعات ملے تھے، ہم نے ڈی جی پی صاحب کو، اکبر الدین اویسی صاحب نے ان کو تمام تفصیلات دیا ہے کہ جو بھی لوگ کھاتی ہے، چاہے وہ جو آدیواسی کے ساتھ کرا، اگر انہیں کھاتی ہے تو اس کو بھی کوئی سزا کے اندر رعایت مروت نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ دکانہ جلا کر غریب مسلمانوں کے مساجد کے اوپر دکانہ جلا کر کاروبار 59-60 شاپ بند کرے، 5 مساجد کے اوپر اٹیک کرے اور پورے تلنگانہ کا ماحول خراب کرنے کے لیے پری پلان طریقے سے، ہمارے کو جو اطلاعات ملے اس کے اندر جو لوگ انوالو ہیں، وہ تمام نام ہم نے ڈی جی پی صاحب کو تمام تفصیلات دی ہے، اور ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے حکومت سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہ ہر قسم کے ساتھیوں کے ساتھ، ہر قسم کے فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ اس کے اندر شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی جرائم ہوئے ہیں، جو تمام کو سخت سے سخت کارروائی، سخت سے سخت ان کے ساتھ کارروائی کی جائے، سب کو اریسٹ کیا جائے اور جیلوں میں بھیجا جائے۔ متحدہ عرب امارات میں 36 انفرادی ٹکٹ جیتنے والوں کے گروپ نے بنگلہ دیش میں تباہ کن سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے اپنے 15 ملین درہم کا انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چٹاگانگ بنگلہ دیش کے گروپ نے تازہ ترین بگ ٹکٹ ابودھوبئی ریفل میں مجموعی طور پر 15 ملین جیتے۔ انہوں نے ضرورت مندوں کو انعام دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ رقم معروف این جی اوز میں تقسیم کی جائے گی تاکہ بنگلہ دیش میں متاثرہ افراد کے خوراک، کپڑے اور رہائش کے ساتھ ساتھ ادویات کی فراہمی کے انتظامات کیے جائیں۔ مشرقی بنگلہ دیش میں سیلاب سے 4.5 ملین افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ہندوستان اور مملکت سعودی عرب نے دیرینہ اور کثیر جہتی دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے نئی راہوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ بات چیت 4 ستمبر کو ریاض میں منعقدہ مشترکہ کمیٹی برائے دفاعی تعاون کے 6 ایڈیشن کے دوران ہوئی۔ میٹنگ کی مشترکہ صدارت ہندوستان کے جوائنٹ سیکرٹری امیتابھ پرساد اور سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع برائے اسٹریٹجک امور میجر جنرل سلمان بن عواد الحربی نے کی۔ ملاقات کے دوران فوجی تربیت،
दिफाई सनत, तहकीक और तरक्की वगैरह जैसे शोबों में मशगूलियत और ताउन के लिए दायरे कार को बढ़ाने के मसले पर तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया गया। महाराष्ट्र के थाने ज़िले के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर एक 25 साल नौजवान ने 2 अफराद पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक शख्स जख्मी हो गया। ये वाक़या गुज़िश्ता शाम पेश आया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग कारोबारी दुश्मनी का नतीजा था। यह हमला जुमेरात की शाम तकरीबन 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस वक्त पेश आया जब सेंट्रल रेलवे के रूट पर वाक़ मज़ाफ़ाती स्टेशन मुसाफिरों से भरा हुआ था। मुलजिम विकास नाना पगारे के खिलाफ BNS और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मरकजी हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए 3,300 करोड़ रुपए की रकम जारी की है। ज़रा ने बताया कि फौरी इमदादी प्रोग्राम के लिए इस रकम को जारी करने का मरकज़ ने फैसला किया। मरकज़ की जानिब से दोनों रियासतों में सैलाब और बारिश के नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए टीमें रवाना की जाएंगी। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज चौहान ने आज तेलंगाना के सैलाब से मुतासरा ज़िले खम्मम का भी दौरा किया। इस दौरान मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सैलाब के नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम तश्कील देने का ऐलान किया है। वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ये इत्तला देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मुकम्मल ताउन किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमा के रोज़ वाज़े तौर पर कहा कि आर्टिकल 370 माजी की बात है और जो लोग इसे बहाल करने का वादा कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी मौजूद है पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। मुल्क की आज़ादी से ही हमारा जम्मू कश्मीर से गहरा ताल्लुक़ रहा है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा की तरफ से शुरू की गई एजिटेशन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी तक हमारी पार्टी पहले जनसंघ और फिर बीजेपी के तौर पर जम्मू कश्मीर के बाकी मुल्क के साथ मुकम्मल इंज़माम की कोशिश करती रही। मरकज़ी वज़ीर शिवराज चौहान ने सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से मुनक़िदा जायज़ा इजलास में शिरकत की। ये इजलास हालिया बारिश और सैलाब के नुकसानात और मुतासरीन को दी जाने वाली राहत से मुताल्लिक़ मुनक़िद किया गया था। इस इजलास में मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय के अलावा रियासती वज़रा और आला ओहदेदारान मौजूद थे। इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर को बारिश की तबाहकारियों से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि एक ही दिन में 40 सेंटीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई। सैलाब से मुतासरा मवाज़ियात और टाउन्स की हालत इंतहाई बदतर है। सड़कें, मकानात, ब्रिजेस और दीगर सरकारी इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा बड़े पैमाने पर फसलें भी तबाह हो गई। चीफ मिनिस्टर ने मज़ीद बताया कि इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक शदीद बारिश और सैलाब से 5,438 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज चौहान ने आज ज़िले खम्मम और महबूबाबाद का फ़िज़ाई दौरा करते हुए बारिश और सैलाब के नुकसानात का जायज़ा लिया। इनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। सैलाब से मुतासरा इलाक़ों का फ़ज़ाई सर्वे करने के बाद खम्मम में बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत सैलाब के मुतासरीन की हर मुमकिना मदद करेगी। शदीद बारिश और सैलाब से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ और वो परेशान हैं। ऐसे हालात में मरकज़ी हुकूमत इनके साथ खड़ी रहेगी। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इस तशवीश को मुज़ाहिका क़ैस करार दिया कि जैनूर में मुसलमानों की दुकानों को जला दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि आया इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाली खातून की जान से ज़्यादा दुकानों के फर्नीचर अहमियत रखते हैं। बंडी संजय ने शहर के गांधी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज जैनूर की खातून की आयादत की और उनके रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने का मशवरा दिया। बाद वहाँ मौजूद मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि जैनूर का वाक़या निर्भय और कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की मौत से भी बड़ा वाक़या है।
लेकिन इस वाक़े पर हुकूमत खामोशी इख्तियार किए हुए है। उन्होंने सदर मजलिस की जानिब से जैनूर के मुसलमानों की इमलाक और दुकानों को जला देने की तशवीश पर तबसरा करते हुए कहा कि असल में कबायली खातून पर इस्मत रेज़ी की कोशिश और इस पर हमले का वाक़या न होता तो जैनूर में इस तरह के हालात क्यों पैदा होते, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। కాబట్టి ఎవరు మాట్లాడతలేరు. ఏమున్నా చచ్చిపోతే సంతాపం, బతుకుంటే పరిహారం. ఇదే పార్టీల పాలసీ, ప్రభుత్వాల పాలసీ, ఇదే పాలసీ. దీని విషయంలో ఎంత సీరియస్ గా వివరించాలో, ఎంత సీరియస్ గా స్పందించాల్సినటువంటి వ్యక్తులు స్పందించకపోవడం, ప్రభుత్వం కూడా ఆ స్థాయిలో స్పందించకపోవడం నిజంగా ఇంతకంటే సిగ్గుచెడి కూడా పట్టుకొచ్చినాం, రిమాండ్ చేసినాం, ఇది కాదు కావాల్సింది. ఇటువంటి సంఘటన జరిగినప్పుడే స్పందించడం కాదు, జరగక ముందు ఏం చేయాలి, జరగకుండా ఏం చేయాలనేది ప్రభుత్వంలో కూడా పాలకులు కూడా ఆలోచన ఉండాలి. ఇది జరిగింది, నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు, ఆ లోపల మళ్ళా రాళ్ళేసిండ్రు కొంతమంది మూకలు, మళ్ళీ గొడవలైనాయి. మరి గొడవలు ఎందుకు జరిగింది, దేనికోసం జరిగిందో ఆలోచించాలి. ఇలా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, ఒక వర్గాన్ని సంతృప్తి పరచడానికి హిందువుల మీద లాఠీచార్జ్ చేస్తారు, హిందూ యువకులను అరెస్ట్ చేస్తారు, నాన్ బెయిలబుల్ కేసు పెట్టి రిమాండ్ చేస్తారు. ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసేది కదే. దానిలో 2 పట్టుకొస్తారు, దీనిలో 50 మంది పట్టుకుంటారు. आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के रुकन असम्बली के आदिम उलम के खिलाफ इस्मत रेज़ी और जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जुमेरात को आंध्र प्रदेश के सत्यवेडु असम्बली हलके से नुमाइंदगी करने वाले तेलुगु देशम के रुकन असम्बली आदिम उलम के खिलाफ उनकी ही पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून वर्कर ने इस्मत रेज़ी का इल्ज़ाम आयद किया था। खातून ने हैदराबाद के प्रेस क्लब में अपने शौहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन असम्बली पर इस बात का न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि उसने इससे मुताल्लिक़ वीडियोज़ भी जारी किए और दावा किया कि रुकन असम्बली ने तिरुपति के एक होटल में इसे तलब करते हुए इस्मत रेज़ी की थी। तेलंगाना डीएससी इम्तिहान की फाइनल की जारी कर दी गई है। स्कूल एजुकेशन की सरकारी वेबसाइट पर फाइनल की और रिस्पॉन्स शीट को अपलोड किया गया है। महकमे तालीम के अहदेदारों ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि प्राइमरी की 13 अगस्त को जारी की गई थी और इसे मुताल्लिक़ एतराज़ात को 20 अगस्त तक कबूल किया गया था और आज डीएससी इम्तिहान की फाइनल की जारी कर दी गई। वाज़ेह है कि जारिया साल 18 जुलाई से 5 अगस्त तक कंप्यूटर पर मबनी डीएससी इम्तिहान मुनक्किद हुए थे। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ एक आइसक्रीम पार्लर में नशावर विस्की आइसक्रीम फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। महकमे आबकारी के अहदेदारों ने बाज़ अफराद की शिकायत पर जुबली हिल्स के आइसक्रीम पार्लर पर धावे किए और वहां के मालिक दयाकर रेड्डी के अलावा शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि इस पार्लर में शराब के साथ आइसक्रीम मिलाकर नशावर विस्की आइसक्रीम तैयार की जा रही थी और इसे नौजवानों बिलखुसूस स्कूली तलबा में फरोख्त किया जा रहा था। जिले कामारेड्डी में सोशल मीडिया के रील्स बनाने के जुनून ने एक नौजवान की जान ले ली। बांसवाड़ा मंडल के देसाईपेट से ताल्लुक़ रखने वाला 20 साला शिवराज सांपों को पकड़ते हुए जिंदगी बसर किया करता था। उसने जुमेरात को 6 फीट लंबा जहरीला नाग सांप का सर अपने मुंह में रखकर वीडियो बनाई। इस दौरान सांप ने शिवराज के मुंह में डस लिया, जिसकी वजह से सांप का जहर इसके सारे जिस्म में फैल गया और उसकी मौत हो गई। और अब मौसम। हैदराबाद में जुमा की शाम एक बार फिर मौसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद शहर के नशीब इलाके ज़ेरे आब आ गए। तेज़ बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक भी जाम हो गई। शाम के औकात में अचानक आसमान अबर आलूद हो गया और 4 बजे से 5 बजे तक शहर भर में मौसलाधार बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में मज़ीद बारिश का इम्कान है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। जैनूर वाक़े के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। अशरार की गिरफ्तारी और गफलत बरतने वाले पुलिस अहदेदारों की मअतली का मुतालबा। कायदे मजलिस मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में मजलिसी वफ़द की डीजीपी तेलंगाना से नुमाइंदगी। मरकजी वजीर शिवराज चौहान का तेलंगाना के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मायना, मुमकिन मदद का तयक़ुन।
تلنگانہ میں ایک ہی دن میں 40 سینٹی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ، زائدہ 5,000 کروڑ کا نقصان۔ تلنگانہ ڈی ایس سی کی فائنل کی جاری، اور حیدرآباد میں نشے کا ایک اور نیا طریقہ، وسکی آئس کریم کی فروخت کا انکشاف۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔